So yesterday, what I was working on, like insert. So I had actually implemented code for inserting element, how to insert element into binary heap, or I can other way I can say how to create a binary heap. Okay, both are same actually. So bind min actually I was working only min heap. Okay, so how to create a binary min heap, how to insert element into min heap. Okay, or I can say how to create a min heap. तो यहाँ पे हमने क्रिएट मिन हीप की में वर्क किया था अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसर्टिंग इनटू मिन हीप एंड मैक्स हीप there is no difference. I will not actually code for that here. I'll make change a little bit here, or I'll tell you only not making changes. So what will be the changes? Only comparison only will be changed, other thing will be same only because here what is the mini thumb rule. If you are at any place like this node, at you are at this index or first second index, and you wanted to insert any child of left child or right child. Okay, so you have to means compare after inserting element in after adding element you have to compare that value with its parents, either it's lesser or greater. So for min heap actually you have to check either in new inserted element should always be lesser greater maximum or greater from its parent. But for max heap you have to check. यहाँ पे कंडीशन जो मैंने लिखा था आपको दिखाता हूँ. मेन कंडीशन यही है. यस, फॉर द मिनिमम min heap what was there lesser we are checking. So if array array ith value is lesser means you have to swap. Okay, but for this condition, for max heap if parent value is greater means from its parent. So this is reverse thing only, completely reverse, because for max heap parent managing as a max value, but here you are inserting new value that is maximum from its parent. So means this is I have to make this condition true. That's why it will swap actually, then only it will swap. So because this is true, and I will swap this element, and it will managed. This way we can manage maximum value at the root node, or for every parents I can manage maximum value from its child. Okay, if everything will be same only, nothing will be changed. आप यहाँ पे मैक्स ही भी क्रिएट करोगे अपनी तरफ से भी, ठीक है. अब नाउ यू आर मीन्स आई एम वर्किंग ऑन like I have inserted element. What other operation I can do? Insert and get operation. I can get min. Next operation get min. I have to find out minimum value from the binary heap. So this is the tree. So you have to find out the minimum. Get min and extract min. Two way I'll do. Okay. Two operation extract min and get min. Two operation I have to perform here. So for get min, because get min I am implementing as like I will not remove, because for let's say I have get min method, and I have to find out minimum value. So what I'll do here, because minimum available always available at root index, and but base condition I have to check surely always. वहाँ पे हमारे पास साइज और आई वॉज मैनेजिंग साइज एंड करंट टू. Okay, two variable I am managing in same class. So you can assume this operation this method also I'm writing in same class only, and I have size and current variable initialized. Okay, and I have inserted element into binary heap. So now I'm have to check either if ये जो either करंट आपका जो करंट वेरिएबल होगा, करंट आइदर करेंट्स ग्रेटर देन जीरो. अगर वो जीरो पे होगा इट मीन्स
there is no element inserted into element, and it means I can't means get any element. So यहाँ पे अगर ग्रेटर देन है, लेट्स से ये लेस देन है, ठीक, लेट्स से करंट इज लेस और इक्वल टू जीरो, सो यू हैव टू रिटर्न हियर, फ्रॉम रिटर्न इन कुछ भी रिटर्न कर सकते बिकॉज यू डोंट हैव एनी मिनिमम वैल्यू, एंड बिकॉज हियर रिटर्न टाइप विल ऑलवेज बी इंटीजर ओनली, so you can return true false here, so it means get mean operation you can perform as a integer dot max value, ऐसे करके max, इस तरीके से कोई कुछ भी आप अंडरस्टूड समझने के लिए, कंपेयर के लिए, कंपेयर करने के लिए आप यहाँ पे कोई वेरिएबल -1 आप रिटर्न कर सकते हो, नेगेटिव वैल्यू और समथिंग, और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, बिकॉज टू इंडिकेट टू द कॉलर और टू नो द कॉलर like I don't have this minimum any element in heap is empty, okay, सो अगर ये नहीं कंडीशन और यहाँ पे रिटर्न कर दिया आफ्टर दैट मीन्स आई हैव सम एलिमेंट, मीन्स दिस इज ग्रेटर देन जीरो, करंट इज ग्रेटर देन जीरो, सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, greater than 0 means you can directly fetch out int val is equal to array I had already, and current I have. So root I current actually no, from not current, zero, from the zero only. सो जीरोथ इंडेक्स पे चूंकि मिनिमम रहता है, आपने यहाँ से इसको निकाला, और यू डोंट हैव टू परफॉर्म एनी अदर ऑपरेशन बिकॉज आई एम गेटिंग मिनिमम, आई एम नॉट डिलीटिंग दिस एलिमेंट, आई एम फेचिंग ओनली, सो जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू को मैं सिर्फ गेट करना है, तो सिंपली गेट करके यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हो, आपको ये भी नहीं करना है, डायरेक्टली रिटर्न कर सकते थे, यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो, ठीक, रिटर्न वेल ऐसे करके, ये इस तरीके से ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट डिलीटिंग एलिमेंट, बट अदर वे सेकंड तरीका क्या है यहाँ पे, ये मैंने आपको दिखा दिया, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई एम इम्प्लीमेंटिंग एक्चुअली एक्सट्रैक्ट मीन, गेट मीन की जगह यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट की जगह हम पुल अभी लिख रहे हैं, क्योंकि बताऊँ काफ़ी बड़ा काफ़ी ज़्यादा करेक्टर्स हो जाएंगे, मैं यहाँ पे स्पेस बचाना चाह रहा हूँ, और वैसे भी मुझे इसको रिमूव करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ, स्पेस हमको वैसे भी ज़्यादा कुछ खर्च कर रहे हैं, ठीक, लेट्स से आई हैव दिस मेथड ओनली, यहाँ पे इंट रिटर्न टाइप होगा, एंड आई एम डूइंग एक्सट्रैक्ट मीन हियर, सो हाउ एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या है यहाँ पे, you are getting this minimum and removing also, so same condition means because you are removing and getting both thing you are doing, so base condition you have to check here, base condition क्या होगी, if जो करंट है, करंट इज इक्वल टू जीरो, देखो निगेटिव तो नहीं हो सकता है, ठीक, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं डायरेक्टली जीरो, इफ करंट इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स आई कैन रिटर्न सिंपली, यहाँ पे आई कैन रिटर्न, क्या रिटर्न करना है वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नाउ एक्सट्रैक्ट मीन इंट मीन इज इक्वल टू एरे जीरो, okay, I have extracted mean and initialize variable min variable, and I'll return later on, but other operation I have to do because I am in getting minimum and deleting also that value, so later next time if I am anybody wanted to get minimum, so
they should not return, means I should not return same value always. Okay, minimum same always, minimum value always. That's why I'm return means deleting. सो यहाँ पे मैंने वन को डिलीट करना है. हाउ टू डिलीट? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक आई यू आल मिस ये नोड जो है डिलीट नहीं होता है. वैल्यू यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे फ्रॉम इट्स लास्ट वैल्यू. ये जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट नोड है, लास्ट नोड फ्रॉम द ट्री, दिस इज कंप्लीट ट्री. So what I'll do, I'm not, it means deleting this node actually, index, because I have array structure only. And this these operation are performed like binary search, a binary heap or a binary tree, but actually I have only array only. Okay, data structure I'm using array only. Okay, so it means I can delete node. So बट अगर आपको याद हो बानी सर्च ट्री और अदर ट्री में हम जो काम कर रहे थे वहाँ पे हम डिलीट भी कर देते थे नोट को. वो हमारा मेमोरी से भी उड़ जाता था. ठीक है, क्योंकि रेफरेंसेस हटा दोगे उस इंडिविजुअल नोड के, तो लेटर ऑन भी गार्बेज कलेक्टर भी कलेक्टेड. ओके, सो यहाँ पे क्या करना है आपको, बिकॉज यू कैन, दिस इज इंडेक्स एक्चुअली इन एरे पर्टिकुलर जीरोथ इंडेक्स. So you have to swap this value by any value. So because if this is root node, you can't swap with any value. You have to manage minimum value at this place. So for now, means I am what I am doing from last value, and I can delete element from the middle. Let's say आपका क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि हम 7 को यहाँ पे क्यों नहीं रिप्लेस कर देते हैं, या 3 को क्यों नहीं रिप्लेस कर देते हैं. तो 7 और 3 को हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मिडिल से हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, बट लास्ट से तो हम एटलीस्ट इसको हटा सकते हैं. कैसे हम डिलीट कर सकते हैं? एक्चुअली में वो डिलीट नहीं होगा क्योंकि साइज का, एरे का साइज फिक्स होता है. ठीक है, if I have taken a particular array and with some size, so later on I can reduce the size of array. So what I can do, because I'm managing minimum, sorry, I'm managing current variable, and I am managing size. Size I can reduce actually, but current I can reduce here. करंट हमारा बताता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं. अभी के केस में अगर देखे जाए 7 सच 11 11 एलिमेंट आई हैव. सो 11 आई एलिमेंट आई हैव, इट मीन्स जो करंट जो हमारा होगा, करंट होगा 11 पे होगा. ठीक, अगर हम करंट को यहाँ पे 10 कर देते हैं, लेट्स से आई मेट करंट एज अ 10, इट मीन्स अब आप इस पे विजिट ही नहीं कर सकते हो इस नोड पे. ठीक है, तो इस वजह से ये नोड ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप इस पे जा ही विजिट ही नहीं कर सकते हो, इट मीन्स ये एक तरीके से डिलीट ही हो गया लॉजिकल वे में. ठीक है, बट फिजिकल वे में डिलीट नहीं हुआ है अभी. तो इस वजह से हम ये लास्ट नोड को पकड़ते हैं. लास्ट नोड क्योंकि हम यहाँ पे साइक करंट के थ्रू यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं इसको, क्योंकि साइज को अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो करंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, और इस पे आ जाएगा तो इसका मतलब हम अब नया एलिमेंट जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड कर देंगे. एक्चुअली में इंडेक्स वाइज देखोगे तो अभी यहाँ पे है, बट यहाँ पे हम एज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे एलिमेंट इम्प्टी. ये करंट इंडेक्स 10 है तो 10th प्लेस इम्प्टी प्लेस को एज्यूम करके हम चलते हैं. ठीक है, आपको आगे और पता चल जाएगा. जैसे 0 1, ये जीरो इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10th प्लेस हमारा इंडेक्स है इसमें. इट डजेंट मीन लाइक आई हैव अ वैल्यू हियर. I don't have value. It indicate current. Actually, current always indicate empty node value. I can tell you why it's indicate empty, because of I am what I am doing while inserting what I was doing actually. In the beginning it was 0, and after inserting, जैसे कि मैंने कोई वैल्यू जीरो इंडेक्स पे डाल दिया, इसके बाद हम क्या करते हैं, करंट को इंक्रीमेंट कर देते हैं. ठीक, तो पहले हम उसको इंक्रीमेंट कर देते हैं इंसर्ट करने के, जबकि वहाँ पे वैल्यू नहीं होती है. ठीक है, तो इस वजह से लेट्स से आगे मूव करते हैं, काफ़ी लंबा हो जाता है कभी कभार. तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिलीट करना है. आई हैव टू डिलीट नोड. So to delete actually what I have to do, replace array जीरोथ इंडेक्स पे हमें वैल्यू डाल देनी है एरे कि करंट जो हमारे पास है. ठीक,
वो करंट, चूंकि करंट हमारा अभी इस समय मान लो ये डिलीट नहीं हुआ था, तो करंट हमारा इस नोड पे एक्चुअली यहाँ पे इंडिकेट कर रहा होगा। क्या होगा इसका साइज? करंट हमारा एक्चुअली उस समय जो इंडिकेट कर रहा होगा, क्योंकि इस ये इंक्लूडेड है, इसका मतलब वहाँ पे 11 था इस समय, ठीक है। तो 11 माइनस करेंगे 1, इस नोड की वैल्यू को मुझे उठाना ना। तो 11 माइनस 1, करंट माइनस 1, इस इंडेक्स करंट माइनस 1 आएगा 10 पे, और टेंथ की जो वैल्यू है उसको हम जीरोथ इंडेक्स पे, वैल्यू जीरो एरे के जीरो इंडेक्स पे हम इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक। ये हमारा रिप्लेस्ड हो गया, इसका मतलब ये यहाँ पे रिप्लेस्ड हो गया। इट मीन्स नाउ व्हाट आई विल डू, करंट वाज एट 11, आई एम रिड्यूसिंग दिस, नाउ करंट कम्स टू 10th प्लेस। अब हम क्या करेंगे इसके बाद में, बिकॉज यहाँ पे मैंने लास्ट वाले एलिमेंट डाला, ये एक्चुअली में लार्जर वैल्यू होगी, ठीक है। एंड आई हैव टू मैनेज दिस थिंग, what I'll to do, I have to manage root always as a minimum because I'm managing min hippo here. So it means you have to do some operations here. What all operation you have to do? Either you have to do actually either while you are deleting element from the heap, or inserting anything. You're deleting element from the heap, or you're inserting, two operation mostly you have to do। लाइक एक कहते हैं उसको हिप्पीफाई बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। ये याद रखना, हिप्पीफाई, ठीक। मिन इपीफाई कर सकते हो या मैक्स इपीफाई कर सकते हो। मिन इपीफाई कब करेंगे? जब हमें जब हमको क्या करना होगा, मिन इपीफाई हम कब करेंगे? जब हमको मिनिमम हीप हम मैनेज कर रहे होंगे। मैक्स इपीफाई मतलब हम मैक्सिमम हीप को मेंटेन कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट मिन में यहाँ पे हमने रिड्यूस कर दिया इसके साइज को। और हमें क्या करना है, यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्टली यहीं पे रिटर्न भी कर दो, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि आप आपके आप मिनिमम वैल्यू भी है, इसको यहाँ पे भी कर दिया, और यहाँ पे आप रिटर्न भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक रिटर्न, सॉरी रिटर्न कहाँ से कर दोगे, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे चेक कर सकता था। क्या कर सकता था कि अगर इसका साइज 1 होता, ठीक, क्योंकि बेस केस है, अगर साइज 1 है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, अगर साइज 1 होता, लेट से आपका ये करंट इजक्वल टू, आपके पास में क्या होता, करंट इजक्वल टू 1 होता, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जीरो असाइन करके, और यहाँ पे हम क्या कुछ हमें यहाँ पे स्वैपिंग भी नहीं करनी पड़ती। ये ऑपरेशन जो है स्वैप वाला, ये नहीं आपको करना पड़ता, और आप डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न कर सकते थे, जो मीन फेच किया यहाँ पे रिटर्न कर सकते थे। बट मैं सोच रहा हूँ करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए। अभी हम इसको छोड़ते हैं, ठीक है। वो बेस कंडीशन आप चाहें तो ऐड कर लेना, क्योंकि ये ऑपरेशन आपको स्वैप वाला, अगर मान लो फर्स्ट यहाँ पे आपको या तो अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। इसका नल पॉइंट क्या इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि करंट अगर हमारा 1 है, तो 1 करंट हमारा नहीं, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर करंट 1 पे भी है तो, और हमें जीरो मिनिमम यहाँ पे हमने निकाल ही लिया है, और जीरो पे जीरो की वैल्यू ही को डालोगे तो डिलीट, वहाँ पे कुछ स्वैपिंग का कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं है, ठीक है। सेम वैल्यू को सेम से ही मतलब सेम वैल्यू को ही सेम इंडेक्स पे ही स्वैप करवा रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो वो केस आप बेस केस यहाँ पे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अगर करंट हमारा 1 पे है, देन वी कैन डायरेक्टली रिटर्न एंड आई कैन रिड्यूस दिस करंट, ठीक। अब हमारा केस क्या होगा, चूंकि मैंने करंट मिनिमम माइनस माइनस कर दिया, अब हमें मिनिमम मिन हिप्पीफाई करना है या मैक्स मैक्स हिप्पीफाई करना है, क्योंकि मिन मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मिन हिप्पीफाई करते हैं। हीप जो हमारा है उसी में है, ऐसे हम लिख देते हैं हिप्पीफाई। और यहाँ पे जो मिन हिप्पीफाई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव टू फॉलो मिन हिप प्रॉपर्टी, सॉरी यहाँ पे मिन है, ठीक। इसको रूट में क्यों बोल रहा था, क्योंकि मैं पेरेंट से निकाल रहा था, ऑलवेज हम रूट से ही निकालेंगे ना, इसलिए रूट भी बोल सकते हो यहाँ पे, बट हमने वेरिएबल मिन ले रखा है तो मिन को रिटर्न करना है, ठीक ये। अब हमारा जो एक्चुअल ऑपरेशन जो होने वाला है वो है इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, मिन इप्पी फाई।
AP5 ये रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप आप कुछ भी ले लेना। ठीक, चलो इसको लार्जर करते हैं थोड़ा। सॉरी, लार्जर ऑलरेडी था। तो अब हमें मिन इप्पीफाई करना है। मिन इप्पीफाई में मोस्टली क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो हम क्या करेंगे हम लोग, मिन इप्पीफाई जो हम लोग करेंगे, ये जो स्टार्ट करेंगे इप्पीफाई, क्योंकि हमने क्या किया है, इस पे चेंज मारा है, ठीक, रूट पे। तो एक्चुअली यहाँ पे रूट्स पे हमने लास्ट एलिमेंट को आई हैव एडेड स्वैप्ड बाय द लास्ट रूट एलिमेंट, रूट नोड स्वैप्ड बाय लास्ट एलिमेंट एक्चुअली। सो ये हमें यहाँ पे इसकी हायरार्की, रूट टू लीफ हमें हिप्पीफाई करना पड़ेगा इसको, ठीक, चेक करना पड़ेगा कि ये एलिमेंट हमारा इसके लेफ्ट इसमें से किस से, अगर क्योंकि मिन मेंटेन कर रहे हैं, इट मीन्स ये दिस नोड शुड बी मिनिमम, शुड हैव मिनिमम वैल्यू, ओके, मिनिमम वैल्यू फ्रॉम इट्स चाइल्ड, बोथ चाइल्ड एक्चुअली। तो अगर मैंने मान लो यहाँ पे कितना था, 14 था, अभी तो हमारे पास 14 है ये। तो अगर यहाँ पे हम 14 ऐड कर देंगे तो ये देखो दोनों से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे दोनों में चेक करना पड़ेगा कि अगर ये मान लो यहाँ पे 14 हमने ऐड कर दिया, एज्यूम करते हैं यहाँ पे हम दोबारा बनाते हैं, यहाँ पे 14 हो जाता है और यहाँ पे 3 हो जाता है और यहाँ पे 5 होता है। तो ये मीन हिप की प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलोइंग मीन हिप प्रॉपर्टी नाउ। So you, how you can means this arrange this these element. अब now you have to arrange actually. What you have to do? You have to arrange elements actually. Okay. So how you will arrange element means you have to put here minimum from these three nodes only. You have to select minimum. You have to find out minimum from all of three values. आपको क्या यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एक रूल फॉलो करना है आपको। यहाँ पे इसके तीन जो नोड्स हैं ये, बिकॉज दिस इज दीज आर चाइल्ड्स एंड दिस इज पेरेंट, फ्रॉम तीनों में से मिनिमम कौन सा है वो यहाँ पे आपको डाल देना है बस। फिर आप यहाँ पे उसके जो भी मिनिमम होगा उसी इंडेक्स को हम आप फिर एज अ करंट नोड मान लेंगे, फिर उसके चाइल्ड को हम मैन चेक करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसके लीफ तक आएंगे, ऑपरेशन और परफॉर्म करते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे हम एज्यूम करके चलते हैं, यहाँ पे आपने जो पास किया था वो जीरो पास किया, श्योरली आप जीरो ही पास करोगे यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ वेरिएबल मान लेते हैं के, ठीक, के एज ए की, ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा। हम नहीं भी अगर पास करते तो भी हम एज्यूम करके यहाँ पे चल सकते हैं कि ये के हमारा जीरो है, यहाँ पे हम डिक्लेयर वेरिएबल करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो वो हम करना नहीं चाह रहे हैं इस वजह से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लेफ्ट चाइल्ड निकालने पड़ेंगे और इसके राइट चाइल्ड निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे की आपके पास में है तो आप यहाँ पे इंट लेफ्ट वेरिएबल ले लो, इंट लेफ्ट वेरिएबल ले लेते हैं, एल वैसे ले सकते हैं एल और आर, बट चलो लेफ्ट चाइल्ड 2 × k+1, ठीक है। इसी प्रकार से आप राइट निकालोगे, इंट, इसको एक काम करते हैं, इसको हम राइट को इधर कर देते हैं, ठीक, इसको हम कॉमा लगा लेते हैं, RIGST, राइट इज इक्वल टू 2k+2, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, इसके बाद में चूंकि हमारे पास में ये आ गए, अब हमें इस तीनों में से स्मॉलेस्ट निकालना, मेन टारगेट हमारा यही है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। मेन टारगेट हमारा है तीनों से स्मॉलेस्ट निकालना और उस स्मॉलेस्ट को रूट से हमें स्वैप कराना है। और वो जब स्वैप हो जाएगा फिर हम उसके जो भी स्मॉलेस्ट होगा उस इंडेक्स पे हम जा करके रिकर्सिव कॉल कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये काम मुझे करना है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मिनिमम। तो एक काम एज्यूम करके चलते हैं, ये हमारा स्मॉलेस्ट ही है। हम क्या एज्यूम करते हैं, लेट्स से आई एम एज्यूमिंग व्हाट आई एम एज्यूमिंग एक्चुअली स्मॉलेस्ट एज अ की ओनली, ठीक है। सो एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इंट, यहाँ पे इसका नाम भी देते हैं स्मॉल, ठीक, एसएम देते हैं, ठीक, ज़्यादा लंबा हम बार बार लिखना नहीं चाहते इतना बार, एसएम देते हैं, ठीक। एसएम को हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा जो पास्ट है, जीरोथ इंडेक्स जो हमें मिला था जिससे हमने स्टार्ट किया, तो वो एक्चुअली जीरोथ इंडेक्स इज दिस जीरोथ इंडेक्स
क्या है ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है, अभी एज्यूम करके चल रहे हैं, बट हम इसको अपडेट करते रहेंगे, ठीक। फर्स्ट आई हैव टू चेक फ्रॉम लेफ्ट, वट आई डू, आई चेक एक्चुअली फ्रॉम इट्स लेफ्ट। लेफ्ट से आप कब चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को भी चेक करना पड़ेगा। तो लेफ्ट से कभी कर सकते हो जब इसका साइज जो है लगभग मिनिमम क्या हो, वन साइज हो। और वन साइज इसका कब होगा, जब हमारा जो क्या कहते हैं, लेफ्ट जो हमारा है, या तो फिर वन लेफ्ट जो हमारा है, क्या कहते हैं इसको, लेफ्ट, ठीक है। तो ये जो हमने लेफ्ट निकाला है वो हमारा जो करंट साइज है, करंट हमारा जो साइज होगा, ये हमारा करंट वेरिएबल यहाँ पे लिख लेते हैं, भूल याद नहीं रहता बार बार, करंट और साइज दो वेरिएबल है हमारे पास, ठीक, ग्लोबली। तो जो करंट है मिनिमम वन तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि जीरो इंडेक्स फिर वन इंडेक्स, तो यहाँ पे इस तरीके से ये होना चाहिए, यानी कि करंट जो हमारा है, यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, इफ जो हमारा करंट है वेरिएबल है, ठीक। अब मान लो कैलकुलेट जो किया जीरो था, यहाँ पे जीरो से हम ये करें कैलकुलेट किया वन हुआ, तो ये करंट भी हमारा क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन तो होना चाहिए, ठीक। या हम ये कह सकते हैं जो हमारा लेफ्ट कैलकुलेट हुआ है उससे जो हमारा वो बड़ा ही होना चाहिए, जो करंट जो है ये हमारा, ये किससे बड़ा होना चाहिए, लेफ्ट से बड़ा होना चाहिए, ठीक। तब हम आगे, तब लेफ्ट से जब बड़ा होगा तभी हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। नहीं तो क्या आ जाएगा, इस इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा हमारा, है ना। क्योंकि अब हम यहाँ पे हमने बड़ा इक्वल क्यों नहीं कहा, अच्छा इक्वल भी कह सकते थे, क्योंकि हमारा ये वन है, क्या है हमारा वन, हमारा लेफ्ट हमारा वन आ जाता है, अगर ये करंट भी वन आ जाता है तो इसका मतलब हमारा ये सही हो जाना चाहिए, मतलब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं आना चाहिए, बट आस आएगा, मतलब उसका इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ सकता है, क्यों, क्योंकि हमारा जो करंट हम मेंटेन कर रहे हैं वो एक एक्स्ट्रा नेक्स्ट वेरिएबल, नेक्स्ट इंडेक्स को मेंटेन कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर फ्यूचर नोड को एक तरीके से हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। जब हम उसमें आगे कभी इंसर्ट करना होगा तो उसको इंसर्ट करेंगे, फिर उसको इंक्रीमेंट करेंगे, इस वजह से हम इसमें ग्रेटर देन एल कर रहे हैं, ठीक है, कि एल से एटलीस्ट बड़ा होना चाहिए, यानी कि अगर हमारा जो करंट है यानी कि 0 1 2 पे है, ठीक, करंट इफ करंट एट इंडेक्स 2, इट मीन्स आई हैव वैल्यूज टिल एक्चुअली वन इंडेक्स, दैट्स वाई इट्स करंट कम्स टू 2, ओके। तो अब हम चेक करते हैं इसकी वैल्यू को, एंड कंडीशन लगाएंगे, what you have to check smallest, because I have assumed smallest, so array, let's say sm, अगर ये sm जो है, ठीक है, ये जो स्मॉलेस्ट हमने ले रखा है, अगर ये स्मॉलेस्ट लेस से हम एज्यूम करते हैं अगर ग्रेटर देन है, ठीक है, क्योंकि और ये है भी करेक्ट भी है, क्योंकि 14 यहाँ पे डाला हुआ है तो ग्रेटर ही तो होगा एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये ग्रेटर देन है तभी हमने यहाँ पे ग्रेटर लगाया, लेस देन नहीं चेक कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेटर देन है किसके, एरे के, एल जो लेफ्ट वाले कुछ मैच कर रहे हैं ना एल से, अगर इफ, अगर ये हमारा ग्रेटर देन ऐसा हमारा ग्रेटर स्मॉलेस्ट नहीं था, इट मीन्स आई हैव टू अपडेट द स्मॉलेस्ट बाय द, आई नहीं है यार, लेफ्ट करना था मुझे, लेफ्ट, इसको हम एल ही क्यों ना करते थे, बट चलो अब मैंने लेफ्ट ले रखा है, एल ई एफ टी, ठीक। तो यहाँ पे हम एल ई एफ टी करते हैं, फिर हम एक और चेक करेंगे, इफ अगर ऐसा नहीं है या ऐसा है भी, देखो इफ इल सिप यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहे, इल सिप इसलिए क्योंकि ए भी कंडीशन ट्रू हो सकती है, ए भी ट्रू हो सकती है, ठीक है, इसलिए आर को चेक करते हैं, ठीक है, आर को यहाँ पे, चलो इसको लेफ्ट ही रखते हैं, सेम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। तो अगर ये करंट जो हमारा है आर से बड़ा है, ठीक है, नल पॉइंट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड को हैंडल कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद में एंड एरे, जो अभी एस एम जो मैं यहाँ पे एस एम जो है हमारा स्मॉलेस्ट, यहाँ पे अपडेट हो भी चुका होगा, हो सकता है हमारा यहाँ से अपडेट हो चुका हो यहाँ पे, या अभी चलो मान के चलते हैं, जूम करते हैं, पहले हमने राइट को चेक किया होता तो राइट पे मिनिमम क्या हो जाता है, ऐसे मिनिमम हमारा 5 हो जाता है, जबकि 5 मिनिमम नहीं है, ठीक है, मिनिमम क्या है हमारा 3 है, तो हमें फिर 5 और 3 को कंपेयर करना होगा ना, इसी तरीके से, बट यहाँ पे एक्चुअली
यहाँ पे मुझे पहली बार में मिनिमम मिल गया था क्योंकि स्मॉलेस्ट लेफ्ट मैंने चेक किया और लेफ्ट में स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, ठीक है। तो एस एम चेक करेंगे क्या एस एम जो हमारा है, ठीक, अभी भी ग्रेटर देन है किससे, एरे के राइट चाइल्ड से। अगर ऐसा है, इसको हम ऐसा करते हैं, स्पेस हमारे पास कम बचा है बट ज़्यादा लिखना भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम इधर लिख लेंगे बचा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं स्मॉलेस्ट को अपडेट करते हैं, एस एम इज इक्वल टू राइट कर देते हैं, ठीक। ये सिंपल तरीका था। आप इस दो स्टेटमेंट जो मैंने स्मॉलेस्ट निकाला है, आप और एक ही लाइन में भी लिख सकते हो या आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो कोड को, ठीक है। आपका व्हाट इज द टारगेट, यू हैव टू फाइंड आउट स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम दीज थ्री, ओके, फ्रॉम दीज थ्री नोड्स। नाउ अब हमने ये भी कर लिया, इसके बाद में अब नाउ यू हैव टू चेक, हो सकता है बाई चांस बट हम मोस्टली नहीं होगा कि जो आपने यहाँ से इसको रिप्लेस किया था वो हो सकता है वो मिनिमम वैल्यू हो इन दोनों से, बट अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे डालते हैं, मुझे ज़्यादा कोई कोड लंबा लिखना भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, इसी के जस्ट बाद इफ़ आई नॉट इक्वल टू आई, आई क्या है, हमने क्या किया, सॉरी आई में बोला, हमारा स्मॉलेस्ट जो है और ये जो रूट में हमारे पास में आया था के, क्योंकि जीरोथ इंडेक्स वाला, ठीक है, जीरोथ इंडेक्स वाला हमारा के पे, क्योंकि इसको हमने अपडेट ही नहीं किया ना के को कहीं पे भी। तो इफ़ हम चेक कर सकते हैं अगर हमारा ये जो के है नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या है, एस एम, अगर नॉट यानी कि स्मॉलेस्ट अपडेट हो चुका है, इन दोनों कंडीशन से स्मॉलेस्ट अपडेट अगर हो चुका है यानी कि चेंज हो चुका है, यानी कि ये स्मॉलेस्ट नहीं था जो आपने यहाँ पे डाला था, इट मीन्स यू हैव टू परफॉर्म स्वैप ऑपरेशन। तो स्वैप ऑपरेशन क्या क्या करोगे, यहाँ पे स्वैप करोगे, ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, एरे हमारा जाएगा और हमारा क्या जाएगा, की जाए यहाँ पे की जाएगा और की जो भी हमारा पैरेंट हमारा, ठीक है, जिसको ये रिकर्सिव कॉल में बार बार अपडेट होता रहेगा की, ठीक है, की जाएगा और ये स्मॉलेस्ट जाएगा, इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे। और इसके बाद में हम यहाँ पे मिन हिफिफाई को रिकर्सिव कॉल को फिर से कॉल कर देंगे, ठीक, मिन मिन इक्विफाई यहाँ पे, अब हम मिन इक्विफाई में यहाँ पे क्या पास करेंगे, पहले तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे हमने जीरो पास किया था, इस इंडेक्स पे थे, अब इन दोनों में से कोई भी मिनिमम हो सकता है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास ये मिनिमम हुआ था, तो यानी कि ये वाली इंडेक्स हम पास करेंगे, ठीक है, यानी कि एस एम जो हमारा है हमारा पास करना है, ठीक, और ये हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चाहें तो इसको एक बार ड्राई रन भी कर सकते हैं एक बार हल्का सा, ठीक है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके। जैसे कि एज्यूम करते हैं, मान लो हमें इसको डिलीट करना था, ठीक है, 14 या मिनिमम हमने यहाँ पे गेट किया, लेट्स से आई नीड गेट एक्सट्रैक्ट मीन, ठीक, और हमने कॉल किया फर्स्ट टाइम में एक्सट्रैक्ट मीन कॉल किया मैंने, एक्सट्रैक्ट मीन, ठीक, मैंने मेथड कॉल किया, मुझे कुछ मिनिमम चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको हमने डिलीट मार दी, इसको डिलीट क्या करना, इसकी मिनिमम एक्सट्रैक्ट किया, मैंने गेट कर लिया, गेट करने के बाद में हमने इसको स्वैप करा दिया, यहाँ पे 14 था तो यहाँ पे आप आ जाएगा 14, ठीक, इस ऑपरेशन के थ्रू हमने स्वैप कराया यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, जीरो को लास्ट एलिमेंट से हमने स्वैप करा दिया, और स्वैप कराने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 14, जस्ट यहाँ पे 14 आ गया है, और ये तो डिलीट हो गया, हमारे पास जो करंट था, करंट को यहाँ पे मैनेज कर रहे थे, तो लेट्स से आई हैव अ वेरिएबल, एक बार कर लेते हैं इसको कंप्लीट, ठीक, हमारे पास 11 था, और यहाँ पे 11 ये इसको मैंने एक रिप्लेस कर दिया, 11 से ये 10 हो गया, और हमने 10 करने के बाद में हमने मेपी 5 कॉल कर दिया जीरो से, क्योंकि यहाँ पे 14 हो गया तो ये तो रिमूव ही हो चुका है, ठीक है।
जब हम हिस्सीफाई हम कर रहे होंगे यहाँ पे, तो लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड निकालेंगे इसके, तो एल हो गया, आर हो गया हमारे पास में, और चेक करेंगे इससे मिनिमम कौन सा इसमें से है, तो इस स्मॉलेस्ट कौन सा है, सॉरी एस एम वेरिएबल। तो यहाँ पे एक एस एम भी हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, आई हैव सम एस एम वेरिएबल आल्सो, एस एम। ठीक। तो एस एम एक्चुअली स्मॉलेस्ट हमारा, लेट्स से आई हैड स्मॉलेस्ट एट जीरो थे ओनली। सो अब हम यहाँ पे क्योंकि जीरो वन टू तीन इंडेक्स हैं, एंड आई हैव टू फाइंड आउट मिनिमम, सो मिनिमम ये थ्री होगा, यानी कि वन होगा। स्मॉलेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हमारा वन पे होगा, और हम यहाँ पे इसको स्वैप करा देंगे 14 को 3 से। कौन सा ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के थ्रू, क्योंकि स्मॉलेस्ट जो हमारा फाइंड आउट हुआ वो नॉट इक्वल टू है के था जीरो, स्मॉलेस्ट हमारा वन पे है, इट मीन्स नॉट इक्वल टू, इट मीन्स आई हैव टू स्वैप, हमें स्वैप करना होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देंगे, 14 कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम 3 कर देंगे। ठीक। अब देखो ये मिन हीप प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है प्रॉपरली। इसके बाद में चूंकि अब हमारा स्मॉलेस्ट कहाँ पे आ गया, ऐसा हमारा वन पे आ गया था, और रिकर्सिव कॉल हमने यहाँ पे कॉल कर दिया वन के साथ में, और फिर से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब हमारा लेफ्ट चाइल्ड हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट हमारा वन है, पहले जीरो था, तो लेफ्ट चाइल्ड हमारा क्या था, वन और टू था, बट अब हमारा वन है स्मॉलेस्ट, इस मीन्स टू इंटू वन प्लस वन यानी कि थ्री हो जाएगा, और ये हमारा फोर हो जाएगा राइट चाइल्ड। ठीक। अब स्मॉलेस्ट थ्री वन थ्री फोर, यानी कि वन इंडेक्स, थ्री इंडेक्स, फोर इंडेक्स से आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, सेवन होगा यहाँ पे, इट मीन्स स्मॉलेस्ट कम्स टू थर्ड इंडेक्स, और बिकॉज थर्ड, बिकॉज दिस थ्री एंड वन नॉट इक्वल, नॉट सेम, नॉट दीज आर नॉट सेम, मीन्स यू हैव टू यू स्वैप दिस वैल्यूज। तो यानी कि आपको 7 और 14 को स्वैप करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 14 डालते हैं, और यहाँ पे हम 7 डाल देते हैं। ठीक। अब देखो ये दिस फॉलोइंग दिस हीप प्रॉपर्टी। ठीक। मिन हीप प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है। अब हम फिर से, चूंकि हमारे पास स्मॉलेस्ट क्या आ गया थे, थ्री है, मिन हीपिफाई कॉल करेंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे थ्री आ जाएगा। तो फिर हम लेफ्ट राइट इसके निकालेंगे, इस थ्री के करस्पॉन्डिंग, थ्री इंटू वन प्लस वन यानी कि फोर हो जाएगा, सॉरी थ्री इंटू टू प्लस वन होगा। ठीक है। तो सिक्स प्लस वन यानी कि सेवन हो जाएगा, और थ्री टू सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू एट हो जाएगा। ठीक। अब इन तीनों में फिर से मिनिमम फाइंड आउट करो। तो 14 10, यहाँ पे देखो लेफ्ट ही लेफ्ट हम चलते आइए, ये इसे कहते हैं किस्मत। ठीक। और यह हमने जो भी आपने मन से बनाया था, 14 आ गया, और आपका कोई भी देखो रूट टू लीप पाथ हो सकता था, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट ही चला गया पूरा। ठीक है। तो यहाँ पे 14 हो गया, स्वैप करा दिया, क्योंकि ये सेम नहीं था, सेवन और थ्री हमारा वैल्यूज सेम नहीं थी ना, या हम ये कह सकते हैं जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो हमारी सेम नहीं थी, के थी। ठीक है। यहाँ पे हम चाहते थे के वेरिएबल भी मेंटेन कर सकते थे, इसको इसको मेंटेन करने के लिए, बट कोई नहीं, सेम ही बात है। तो यहाँ पे लास्ट में जाओगे, फिर से ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बट आप नहीं, अभी कैसे ब्रेक होगा ये रिकर्सिव कॉल, यहाँ पे आप जाएंगे, ये स्मॉलेस्ट है, सॉरी हमारा थ्री था, अब हमारा स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट सेवन था, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट सेवन हमारा है, और इसके बाद में यहाँ पे आएगा इफी फाइल सेवन के साथ आप कर दोगे, बट यहाँ पे जो आप सेवन के साथ करोगे लेफ्ट राइट हो जाएगा। चलो इसको हम आगे एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इसके लेफ्ट क्या होगा, सेवन इंटू फोर्टीन प्लस वन, 15 एंड 16, ये आ जाएंगे लेफ्ट राइट। फिर हम स्मॉलेस्ट एज्यूम कर लिया मैंने, सेवन स्मॉलेस्ट हमारा सेवन ही है, और यहाँ पे चेक करेंगे क्या करंट जो हमारा है ग्रेटर देन एल है। करंट जो हमारा एक्चुअली है वो कितना है, मैक्सिमम हमारा कितना था यहाँ पे, सेवन एट नाइन, नाइन तक है। ठीक। या इस समय करंट हमारा टेन पे है, सॉरी टेन पे है, क्योंकि टेन हमारा करंट है, और ये क्योंकि करंट हमारा लेस देन है अभी किससे, लेफ्ट या राइट से, इट मीन्स
ये हमारा ब्रेक हो जाएगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा, और ये हमारा सेम हो जाएगा, ये स्किप हो जाएगा और ये रिटर्न हो जाएगा। तो यानी कि अब हम बैक ट्रैक करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। एक्सट्रैक्ट मीन हो गया, डिलीट ऑपरेशन भी हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली यही थे ऑपरेशन, एक्सट्रैक्ट या कहें या फिर हम डिलीट। इंसर्ट एंड डिलीट टू ऑपरेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड डिलीट मीन्स आपको हिप्पीफाई करना पड़ता है, और इसके बाद में आप और भी मल्टीपल ऑपरेशंस यू कैन डू एक्चुअली। अदर ऑपरेशंस लाइक यू कैन मॉडिफाई पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, यानी कि आप इंक्रीमेंट कर सकते हो वैल्यू, आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हो। ठीक, बट इन दोनों कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आपको हिप्पीफाई करना पड़ेगा, मिन हिप्पीफाई करना पड़ेगा या मैक्स हिप्पीफाई। मैक्स आप खुद से कोड करेंगे, और क्योंकि मिन हिप मैंने बता दिया सेमी है लगभग में दोनों। एक्सट्रैक्ट मिन बता ही दिया मैंने, यानी कि डिलीट भी करना मैंने आपको बता दिया लगभग में। एक्सट्रैक्ट मिन इज इक्वल टू डिलीट ओनली, थोड़ा बहुत चेंजेज आएगा, बट लगभग में सेम ही है। स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं और फिर डिलीट कर रहे हैं। उसमें क्या करना होगा, डिलीट में केवल डिलीट ही करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, हमें रिटर्न करने की कोई ज़रूरत भी नहीं। हाँ, डिलीट में भी हम रिटर्न करवा ही सकते हैं। ठीक, तो थैंक यू गाइज। आपको अगर अच्छा लगा हो नेक्स्ट लेक्चर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।